Hello everyone. So we'll back with the 11th class chemistry topic. Now we begin with a new chapter, hydrocarbons. So this is something what you all know about hydrocarbons. So hydrocarbons, as we all know, compounds having carbon and hydrogen atoms in their molecule. Only carbon and hydrogen atoms in their molecule are called as hydrocarbon. That is what known to us. Hydrocarbons can be divided into two types, and that is what we know: open chain and cyclic. So two types, one is open chain and another is cyclic or ring chain. Cyclic or ring compound. So when we talk about classification of hydrocarbons, so we take hydrocarbons here. एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सो हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली divided into two types: open chain hydrocarbon, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक compounds, that is what we call as open chain, and another is cyclic or ring chain compound. So two types. The open chain can be further divided into two types. That is what we all know: saturated and unsaturated. करेक्ट है? ये तो सब बेसिक फंडामेंटल है. तो ओपन चेन कैन बी कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड that can be saturated or unsaturated. अब saturated में एग्जाम्पल भी हमें पता है. And what is that? Alkane. Alkanes is the example for saturated hydrocarbons. And for unsaturated hydrocarbons, yes, what is that? Alkenes and alkynes. So this is what the example for unsaturated. Alkanes have single bond, alkenes have double bond, whereas alkynes have triple bond. Correct? Now, this saturated hydrocarbon alkanes can be further divided into two types, and that is what? Straight chain and branch chain. So straight chain and branch chain is what? The two saturated hydrocarbon. ऐसा ही unsaturated में भी हो जाएगा. Unsaturated divided into two type. इसमें भी लिख सकते हैं straight chain and the branch chain. Straight chain and branch chain. So saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon, as we all know, example is alkane, having single bond between carbon and carbon, as well as between carbon and hydrogen. That can be divided into two types, classified into two types: straight chain and branch chain. Unsaturated, having example alkenes, where carbon-carbon double bond, and alkynes carbon-carbon triple bond. That can also be divided into two types, that is straight chain unsaturated and branch chain unsaturated. We'll see all these in detail further. Now cyclic or ring chain compound, they are also of two types. एक तो हो जाएगा cyclic or ring chain compound, they are of also two types.
we call them as saturated and unsaturated. Again here saturated, अब जरा सा याद करके बता दो मुझे, सैचुरेटेड में क्या कंसीडर करना पड़ेगा, अनसैचुरेटेड में क्या करना होगा। तो मुझे सैचुरेटेड, साइक्लिक और रिंग चेन कंपाउंड बतला दो, एंड दे आर ऑल एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक आपको याद आ रहा होगा, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ाया था आपको, है ना। ये देखिए इस तरह से, है ना, सैचुरेटेड है, क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, दे आर सैचुरेटेड cyclic hydrocarbon. They are also termed as alicyclic. Unsaturated hydrocarbon can be of two type. Unsaturated hydrocarbon can be of two type, that is aromatic and non-aromatic. Unsaturated hydrocarbon, aromatic and non-aromatic. ये ट्रोपोन वगैरह के एग्जाम्पल कंसिडर किए थे, और एरोमेटिक में तो बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, ये सब आ जाएंगे अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक में ये ट्रोपोन, ट्रोपोलोन हमने पढ़ा था, वो नॉन एरोमेटिक में। तो क्या हम एकदम सिंपल फंडामेंटल से शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच आर हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, है ना, कंपाउंड हैविंग ओनली carbon and hydrogen atoms in their molecule and they can be classified as per this flow chart. And what the flow chart read here, एक बार फटाक से देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन known as aliphatic, cyclic और ring chain। तो ओपन चेन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन divided into two types, saturated hydrocarbon and unsaturated. Saturated में alkanes आ गया, and this saturated again divided further into straight chain and branch chain. Whereas unsaturated hydrocarbon which have double or triple bond between carbon atom also divided into two types, straight chain and branch chain. Whereas cyclic or ring chain, again they are also divided into two types, that is saturated and unsaturated. अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्या हो गया कि cyclic saturated hydrocarbons are known as alicyclic. तो alicyclic compounds are what? Saturated cyclic hydrocarbon, और उसके एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर से हमें समझ में आएंगे, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, लाइक दैट। Unsaturated cyclic can be aromatic और non aromatic. अब aromatic में तो एग्जाम्पल हमें पता है, बेंजीन itself, बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है, they are aromatic, unsaturated. But non aromatic में ट्रोपोन, ट्रोपोलोन, they are non aromatic hydrocarbons which are cyclic in nature. So this is all about classification of hydrocarbon. Now we'll see the another aspect of hydrocarbon, and that is isomerism, which we see. So next point comes isomerism, and to discuss isomerism we take hydrocarbon, that is alkanes, into consideration. So now we will discuss hydrocarbon alkanes. Alkanes are what? Alkanes are what? यहाँ से देख के बोल सकते हैं, alkanes are saturated aliphatic hydrocarbon, और alkanes are saturated open chain hydrocarbons. तो उसकी डेफिनेशन ऐसी बनना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आना चाहिए। alkanes are saturated aliphatic hydrocarbons having single bond between carbon atom and carbon hydrogen atom. तो ये तो डेफिनेशन आप सभी को आती है, इतने बार हमने पढ़ लिया है। अल्केन्स, तो क्या क्या टर्म आना चाहिए? सैचुरेटेड, एलिफेटिक,
hydrocarbons, yani only carbon and hydrogen atoms are present in the molecule. Hydrocarbons having what? Having single covalent bond. Having single covalent bond. अब कोवेलेंट बॉन्ड भी कौन सा रहेगा यहाँ पर, ये हमें पता है, वो कौन सा होगा? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड. हमने सिग्मा और पाई ये दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड देखे थे. तो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम्स. और जनरल फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+2 वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ये सब क्या एकदम इजी चीज है जो रिवीजन हो गया आपका. ठीक है. नाउ दिस अल्केन विच हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 shows isomerism. It shows isomerism of two type. It shows isomerism और टू टाइप में ये एक ही बेसिक आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि हमने पढ़ा था इसके पहले आइसोमेरिज्म पॉइंट में, है ना, फंडामेंटल में. स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा? चेन isomerism. It shows chain isomerism. Chain isomerism क्या होता है? The isomerism which is observed in a molecule which have different arrangement of carbon chain. When the carbon chain are different, then we see chain isomerism. So carbon chain get different. Carbon chain is different in a molecule, we call it as chain isomerism. Isomers which have different arrangement of carbon chain is what we call as chain isomerism. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. पहले तो ये it is observed in C4 onwards molecule. It is observed in C4 onwards molecule. C4 onward यानी n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4, C4H10, C4H10 यानी ब्यूटेन ऑनवर्ड्स आपको ये आइसोमेरिज्म दिखेगा. तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन इटसेल्फ. ब्यूटेन का चेन आइसोमर बनाते हैं C4H10. सो फर्स्ट आइसोमर क्या बन जाएगा? एज वी ऑल नो, पहले हमें कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करना होता है, 4 कार्बन का कार्बन स्केलेटन एंड रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. तो ये फर्स्ट आइसोमर बन गया. वी कॉल इट एज एन ब्यूटेन और सिंपल ब्यूटेन वी कैन से. अब इसी का आइसोमर बनाना है बेटा, तो क्या करेंगे कि ये जो 4 कार्बन एटम है इसकी चेन को हम डिफरेंट पैटर्न में अरेंज करेंगे. अब वो डिफरेंट पैटर्न क्या हो जाएगा? अब ये वैलेंसी सब हाइड्रोजन है ना, दिस इज व्हाट नोन टू अस. अब मैं ये हाइड्रोजन ड्रॉ कभी नहीं कर पाया तो आप समझ जाएंगे कि जो वैलेंसी सर ने यहाँ छोड़ा है वो हाइड्रोजन के लिए है. तो अब ये कार्बन चेन को अरेंज कर लो डिफरेंट पैटर्न में. तो मैंने यहाँ ये बना अरेंज किया और ये ब्रांच लगा दिया, हो गया डिफरेंट अरेंजमेंट. नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम, हाइड्रोजन ऑल्सो रिमेन सेम. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम आ गए अपने, है ना. तो ये हाइड्रोजन एटम बन गए. So this is what the other structure of C4H10, another isomer of C4H10, and we call this as isobutane. Isobutane. अब इसका IUPAC नेम भी तो आता ही है आपको, हमने IUPAC
नोमेनक्लेचर इतना डिटेल में इतने सारे एग्जाम्पल कंसिडर किए, सो इट इज कॉल्ड एज 2-methyl propane. 2-methyl propane is what the isomer of butane. अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं थोड़ा सा हटके, हेक्सेन का एग्जाम्पल. हेक्सेन C6H14. Okay, so example number 2. Example number 2, hexane. Make isomer of it. Make how many chain isomer possible for hexane molecule? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो स्ट्रेट चेन वाला है वो स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे. तो ये तो बेसिक फंडामेंटल, एवरी मॉलिक्यूल विल हैव दिस आइसोमेरिक फॉर्म. तो ये 6 कार्बन एंड द रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. और ये अल्केन्स है तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑल सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये हेक्सेन हो गया, इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं एन हेक्सेन. अब इसके रिमेनिंग आइसोमर बनाना है तो क्या करेंगे, अब ये हेक्सेन में से एक कार्बन को ब्रांच में लेते हैं. अब ब्रांच कभी भी टर्मिनल पे नहीं होती है, ब्रांच इज ऑलवेज नॉन टर्मिनल. तो ये दोनों टर्मिनल, समझा है आपको. देखिए कैसे आइसोमर बनेंगे, ये टर्मिनल को छोड़ दो, टर्मिनल कार्बन पे ब्रांच नहीं होती है, नॉन टर्मिनल पे ब्रांच बनाना है हमको. तो नॉन टर्मिनल पे मुझे ब्रांच बनाना है. तो देखिए फिर यहाँ पर ब्रांच बना लेते हैं. ये 4 और 5 कार्बन, टर्मिनल को छोड़ दिया हमने, ये टर्मिनल छोड़ दिया, नॉन टर्मिनल पे एक ब्रांच लगा दी है CH3 की. तो यहाँ पर अब क्या, रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. तो इसका, इस आइसोमर का नाम क्या हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है. टोटल स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की बनी, 5. 5 + 1 6. तो 6 ही कार्बन है, बट arrangement of carbon chain is different and we get here 2-methyl pentane. 2-methyl pentane is the first isomer, second isomer for hexane. ठीक है, तो अल्केन्स का चेन आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं और ये चेन आइसोमेरिज्म में सेकेंड आइसोमर बन गया. नाउ लेट अस टेक द थर्ड आइसोमर ऑफ इट. अब क्या करें, नेक्स्ट फिर से अब हम टर्मिनल कार्बन पे तो ब्रांच नहीं लगा सकते, अब एक और ब्रांच बढ़ा देते हैं, ये थर्ड कार्बन पे ब्रांच लगाते हैं. तो एक चेन में से एक कम हो जाएगा. तो अब क्या होगा, टोटल 4 विल बी एज ए पेरेंट चेन. टर्मिनल पे तो ब्रांच लगानी नहीं है अपने को, तो टर्मिनल को छोड़ दिया. यहाँ पर एक CH3 लगा दीजिए, यहाँ CH3 लगा दो, सही है. और रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो. तो देखो बेटा ये आ गया, यहाँ पर एक और आइसोमेरिक फॉर्म आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, सही है. अब इसका नोमेनक्लेचर करो. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, then these 2 are the branches. Number the carbon so that the branch chain gets the lowest possible number. तो आप नंबरिंग किसी भी टर्मिनल से करो, है ना. ये लेफ्ट हैंड टर्मिनल, ये राइट हैंड टर्मिनल. तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ. सेकेंड एंड थर्ड कार्बन आर हैविंग मिथाइल ग्रुप, so we name it as 2,3-dimethyl. 2,3-dimethyl. How many carbon? Butane 4. 2,3-dimethyl butane. आ गया नोमेनक्लेचर. तो ये एक और आइसोमर बन गया. आइसोमर देखते जाएंगे कैसे बना. फर्स्ट वाला आइसोमर N-hexane स्ट्रेट चेन, नो ब्रांच. नेक्स्ट में क्या किया कि सेकेंड कार्बन पे ब्रांच दे दिए. नेक्स्ट में क्या किया, सेकेंड पे और थर्ड पे ब्रांच दे दिए. अब और क्या आइसोमेरिक फॉर्म इसका लिख सकते हैं हम, और एक आइसोमेरिक फॉर्म लिख सकेंगे, फोर्थ आइसोमर.
तो फोर्थ आइसोमर देखो अब क्या बन सकता है, यहाँ पर फिर से 4 कार्बन लिया, अब सेम कार्बन पे 2 ब्रांच दे दो आप, सेम कार्बन, गिव 2 branches on same carbon atom. When we provide 2 branches on same carbon atom, नंबरिंग क्या होगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल कार्बन 6 है, फॉर्मूला बिल्कुल सही चल रहा है, रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, सो वी नेम इट एज 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl butane. 2,2-dimethyl butane is the another isomer for this compound. अब इसी का और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है क्या? यस, वन मोर आइसोमर कैन बी मेड. क्या पॉसिबल होगा? यहाँ देखो सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में हमने क्या किया था कि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल दिया था, अब हम थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल रख सकते हैं. तो क्या करें, फिर से एक पेंटेन की चेन बना लो, सेकेंड पे दिया था, अब थर्ड कार्बन पे सिक्स्थ वाला कार्बन, थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ गई एक मिथाइल, सो इसका नोमेनक्लेचर, ये एक और पॉसिबिलिटी होगी. व्हाट इज द नेम? 3-methyl pentane. तो पेंटेन के 2 आइसोमर बन गए है ना, सेकेंड एंड फिफ्थ. ब्यूटेन के 2 आइसोमर बन गए, 2,3-dimethyl एंड 2,2-dimethyl. और एक जो आइसोमर है वो n-हेक्सेन का. कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? एक्सप्लोर कर सकते हैं हम. फिर से एक बार हेक्सेन, तो आपने इसके ये 6n-हेक्सेन बनाया, देन सेकेंड कार्बन पे दे दिया 2-methyl pentane, तो ये 6 कार्बन का आइसोमर हो गया. अब थर्ड कार्बन पे दे दिया तो 3-methyl pentane, देयर इज नो रिपीटिशन. देन हमने क्या किया, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे 2 ब्रांच दे दी, तो 2,3-dimethyl butane. अब चेंज क्या किया कि सेकेंड पे ही हमने दोनों ब्रांचेस को फिक्स कर दिया. अब ये सेकेंड कंसीडर करो या ये सेकेंड कंसीडर करो, दोनों कंपाउंड एक ही रहेंगे, है ना. अगर ये मैंने राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो सेकेंड कार्बन पे हमको 2 ब्रांचेस आ गई. अब अगर ये सो कॉल्ड थर्ड कार्बन अगर मैं यहां से लूं, सो कॉल्ड थर्ड कार्बन, तो मेरी नंबरिंग लेफ्ट से आ जाएगी अब, और लेफ्ट से आ गई तो फिर से ये सेकेंड ही बनेगा, तो दूसरे आइसोमर नहीं बन सकता, है ना. कि हमने क्या किया, ये सेकेंड पे 2 मिथाइल, अब अगर इस पे 2 मिथाइल लगा दिया तो मेरी नंबरिंग कहां से शुरू हो जाएगी, पेरेंट कार्बन की लेफ्ट से 1 2 3 4, करेक्ट है. तो फिर से क्या मिल रहा है, सेकेंड पे ही मिल रहा है, यानी ये रिपीटिशन नहीं हो सकता. इसको अगर यहाँ भी शिफ्ट कर दिया तो थर्ड नहीं बनेगा, वो बनेगा सेकेंड कार्बन ब्रांच के साथ, तो 2,2-dimethyl. तो हेक्सेन के कितने आइसोमर मिल गए हमको, हेक्सेन के 5 चेन आइसोमर मिल गए, ब्यूटेन के 2 आइसोमर मिल गए. अब आप क्या करेंगे कि आप पेंटेन के बनाएंगे. सो थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ये आप खुद बना के देख लेना. आपको पेंटेन के हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, C5H12. सो मेक chain isomers for pentane, chain isomers for pentane. Okay, so this is what the introduction of hydrocarbon and alkanes. तो अल्केन्स में एक चीज और देख रहे हैं हम. अल्केन्स में क्लासिफिकेशन में देखे थे हमने कि स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. तो ये स्ट्रेट चेन है, देखो है ना, एन ब्यूटेन क्या है, ये स्ट्रेट चेन अल्केन हो गया. और 2-methyl ब्यूटेन, ये क्या हो गया इसका, ये ब्रांच चेन हो गया. वैसे ही हेक्सेन में n-हेक्सेन इज अ स्ट्रेट चेन हेक्सेन और अल्केन, and all other are
ब्रांच चेन अल्केन। तो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन alkanes can be divided into two types, straight chain alkanes and branch chain alkanes. Straight chain alkanes में क्या होगा? Only two free terminals. Straight chain alkanes देखेंगे भाई यहाँ पर straight chain alkanes, no confusion. Straight chain alkanes have only two free terminals. Only two free terminals, whereas branch chain alkanes have more than two free terminals. जैसे 2-methyl और 3-methyl में कितने टर्मिनल दिख रहे हैं हमको? 2-methyl और 3-methyl में 3 टर्मिनल्स। देखो जी 3 टर्मिनल्स, मैं एनसर्कल कर दूं, ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, ये तीसरा टर्मिनल। वैसे यहाँ पर भी इसके 3 टर्मिनल्स हो गए। But other isomers can have more than 3 terminal. जैसे यहाँ पर क्या टर्मिनल 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो what do we mean by branch chain alkanes? Those alkanes which have more than 2 free terminals are termed as branch chain alkanes. And straight chain alkanes, they have only 2 free terminals. तो ये straight chain वाले हैं जिनके पास 2 free terminals है। करेक्ट है? So this is what the general introduction. Now we will, in the next class we will take the conformation of alkanes, taking example of ethane. Conformation is a type of isomerism. ये हमने पढ़ा था, एक बार आप देख लेंगे। वैसे भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।